मेरे को शुरू से था कि मेरे को ना एक सिंगर बनना है, मेरे को स्टेज पे खड़े होना है, सब लोग मेरी आवाज़ सुने. Put this shit in a frame, better know I don't blame everything I say. Man, I used to play, let me elevate this set up prank, heavy working on a plan. Rhymes inclined to break your spine. They say that I'm so fine, you could not match my grind. Please, you know, no waste my time. पहले स्टार्ट किया था, मेरा मेन लाइन ये थी कि मैंने सिंगिंग करनी है. रैपिंग का तो कोई वो था ही नहीं. बट फिर मैंने अपने फर्स्ट सॉन्ग में जैसे रैप एक पोर्शन आता है, वो मैंने ऑन द स्पॉट लिखा. I love myself when I treat me right. I love myself when I make me smile. I love myself like no one ever did. I love myself and I always will. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ. जैसे पहले किसी ने मेरे को जितना प्यार नहीं किया, मैं उससे ज़्यादा खुद को करती हूँ. ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं खुद के साथ बातें करके सारा दिन निकाल सकती हूँ. मैं ऐसे बातें करती हूँ. ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ. हाँ, ਜਿੰਨੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਉਨਾ ਹੀ मज़ा आऊगा. बहुत ज़्यादा. अगर आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना है ना, तो पहले खुद के साथ बातें करना स्टार्ट करना होगा. शीशे के सामने खड़े हो, खुद से बातें करो, बहुत कॉन्फिडेंस आता है. ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋ रिदम? हाँ, ऐसे तो करण औजला को बहुत सुनती हूँ, बहुत बड़ी फैन हूँ. अगली बारी मैं ऑन कर देना, करनी नहीं गल कहना पड़ देना. मैं तो हुन होनी नहीं उड़ीक लगदा, भाभी ਨੂੰ दिखाता कहंदी ठीक लगदा. ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ. ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਬਟ ਟੈਲੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ. ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਆ. ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਕੁੜੀ ਗਾਉਂਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ. ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਬਟ ਗਾਉਂਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ. ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਦਮ ਦੇ ਨਾਲ. ਹੈਲੋ ਰਿਦਮ. हेलो. ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ? मैं बढ़िया. आपके? ਫਿਰ ਰੇਡੀਓ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ हाँ जी. ਚਲਿਏ ਫਿਰ. चलो. ਚਲੋ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ. ਸੋ ਰਿਦਮ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਸ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੀ ਕੁੜੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ ਕਰਾਂ. ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं 15 ईयर्स की हूँ. 15 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ. ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? मैं 10th में. 10th ਦੇ ਵਿੱਚ. ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? मैं श्री मुक्तसर साहिब से बिलोंग करती हूँ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी. ਓਕੇ ਜੀ. ਸੋ ਪ੍ਰੋਮੋ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ ਰਿਦਮ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀਕ ਆ, ਬਟ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਿਦਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾਓਗੇ ਅੱਜ? पक्का. ਠੀਕ ਹੈ. ਅੱਛਾ ਰਿਦਮ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ? मेरे को शुरू से था कि मेरे को ना एक सिंगर बनना है, मेरे को स्टेज पे खड़े होना है, सब लोग मेरी आवाज़ सुने. सिर्फ आवाज़ ही नहीं सुनानी, सबको इंस्पायर भी करना है अपनी जर्नी से. ओके. कि मतलब इतनी छोटी एज में स्टार्ट करना, हाँ. सॉन्ग्स भी एम्पावरमेंट या फिर अपने बारे में लिखना. हाँ. तो मैं चाहती हूँ सब इंस्पायर हों, इस इंडस्ट्री के साथ और लोग जुड़ें कि जिनको भी म्यूज़िक नहीं अच्छा लगता, उन्हें भी पसंद आए. ओके. एंड मेरे को बड़े बड़े स्टेजेस पे जाना है. ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਜੀ. ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਆਪ ਹੋ? हाँ जी. ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? जैसे जैसे सॉन्ग सुने उनकी वाइब से, पहले तो मैं कॉपी करके लिखती थी कि ठीक है वो सॉन्ग्स में सेम लिरिक्स, बीच में से थोड़े थोड़े चेंजेस करके. थोड़े चेंजेस किए पहले जब 11 ईयर्स की थी. जब तक 1 साल हुआ, प्रैक्टिस हुई, फिर और अच्छा लगने लग गया, तो और कॉन्सेप्ट्स आने लग गए और आइडियाज़ आए लिरिक्स के. फिर मैं सिर्फ कॉम्पोजिशन सेम रखती थी, बट लिरिक्स खुद लिखती थी. ਅੱਛਾ ਜੀ. फिर उसके बाद कॉम्पोजिशन भी खुद स्टार्ट की. मतलब टाइम लगा, बट ऑब्वियसली कोई भी चीज़ को अच्छा करने टाइम लगता है. ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਗਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਟਫ, हाँ. ਹੈ ਨਾ? ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? बहुत ज़्यादा. मतलब जो मेरा फर्स्ट सॉन्ग था, हाँ. एक्चुअली वो कोई और होने वाला था. मी एंड माई सेल्फ वॉज नॉट माई फर्स्ट सॉन्ग. ਓਕੇ. तो फिर मैं जब वहाँ पे स्टूडियो में गई, मेरे को स्टूडियो में उन्होंने कहा कि इसकी कॉम्पोजिशन ऐसे सही नहीं आ रही, ये चीज़ सही नहीं बैठ रही. हाँ. तो वो कहते कि या तो घर जाओ, प्रैक्टिस करके आओ 1 महीना, अगले महीने होगा. बट मेरे को था कि नहीं, अब तो मैंने करवा के जाना है, अब मैं आई हूँ तो फिर मैंने वहाँ पे स्टूडियो में बैठ के 10 मिनट्स में सॉन्ग लिखा. और जो उस टाइम पे जब हम सॉन्ग उस टाइम पे लिखते हैं, जो कॉम्पोजिशन आती है फ्रेश होते हैं कॉम्पोजिशन. ਓਕੇ. तो मतलब मेरे दिमाग में था कि ठीक है, बस अब मेरे दिमाग में आया तो बस अब गाना है. तो हो गया मेरा फर्स्ट. ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਦਮ? ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਆ, ਲਿਖਣੇ ਆ? ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? जब मैंने सॉन्ग्स लिखने होते हैं ना, चाहे मैं स्कूल में बैठी हूँ, घर पे हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, बस एक
एकदम से दिमाग में आइडिया हिट किया या कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि मतलब किसी ने मेरे को डिस्करेज किया तो उस पे गाना लिख दिया। एंड मी एंड माई सेल्फ फॉर दैट हाँ डिस्करेज कितना से किसी ने? हाँ, मेरे एक सर ने कहा था कि आप सिंगिंग नहीं कर सकते। अच्छा जी। तो मैंने उस मोमेंट पे जब मैं बैठी थी स्टूडियो में, मेरे को यही बात याद आ रही थी कि मैं सिंगिंग नहीं कर सकती। तो फिर मैंने कहा नहीं, अब तो मेरे को प्रूव करना है सबको, उन सर को भी प्रूव करना है कि मैं सिंगिंग कर सकती हूँ। तो उसी बेसिस पे मैंने वो सॉन्ग लिखा। ਉਹ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ? हाँ जी, अब नहीं पढ़ाते, पहले थे। ਸਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਮਿਲੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਾਂ, ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਗਟਸ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਖਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ, हाँ ਹੈ ਨਾ? ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੁੱਭਦੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ? नहीं, अब तो मतलब जब इस इंडस्ट्री से मतलब मैं हुई ना कि हाँ ठीक है पता लगा, तो फिर ये भी एक है कि हेटर्स तो बहुत मिलेंगे अगर इस इंडस्ट्री में जाना है तो फिर अगर सबकी परवाह करने लगे तो काम नहीं हो सकता। हाँ, नहीं काम हो तो या तो आप उन नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव वे में लो कि वो सब कह रहे हैं तो उससे इम्प्रूव करना है, या कोई गलत बोल रहे तो करके दिखाना कि हाँ ठीक है कर सकते हैं। बट नेगेटिव वे में और उसको लेके बैठ जाने से तो फिर काम नहीं हो सकता। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਹੈ ਨਾ? ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂ। ਰਾਈਟ? ਬਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰਿਦਮ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਯੂਨੀਕ ਪੀਸ, ਯੂਨੀਕ ਪਰਸਨ ਵੀ ਕੁਡ ਸੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ऐसे तो मतलब ऐसे सब्जेक्ट है, बट कॉन्वेंट स्कूल है तो ऑब्वियसली इंग्लिश ज़्यादा प्रमोट की जाती है। हमने स्पीच देनी है स्कूल में इंग्लिश में, असेंबली होगी इंग्लिश में, तो फिर इंग्लिश के हमें 2 सब्जेक्ट्स भी हैं। ओके। तो फिर आदत पड़ जाती है कि इंग्लिश में अडेप्ट हो गए। और उस टाइम पे जिस टाइम पे मैंने सॉन्ग्स जैसे इस साइड में मेरा इंटरेस्ट गया था तब लॉकडाउन था, एंड तब बहुत जैसे के पॉप बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे था, टेलर स्विफ्ट ये सारे पीक पे थे अपने। तो फिर उस टाइम पे मैंने इनको सुना, मेरे को लगा कि हाँ ठीक है। मेरे को पहले था कि मैं सिंगिंग नहीं कर सकती, जैसे मैं पंजाबी सॉन्ग्स करती थी तो हम जैसे सुनते हैं नॉर्मली पंजाबी आपा, हाँ। तो मेरे को लगता था मेरा फ्लो इतना अच्छा नहीं है, बट मैंने जैसे जैसे इंग्लिश सुने मेरे को लगा हाँ ठीक है, मेरा इस साइड पे ज़्यादा अच्छा फ्लो है। और वो ट्रेंडिंग पे था उस टाइम पे, तो वो उस चीज़ पे ही ज़्यादा फोकस किया। और जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है तो फिर उसके बाद तो उस चीज़ से अडैप्ट हो गए। ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਟ ਰਿਦਮ ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਵੋਕਲ ਅੱਛੀ ਹੈ? ਕਿ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਾਉਣਾ ਆ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? पहले तो जब मैंने के पॉप सुनना स्टार्ट किया था, जब मैं आपको बता रही हूँ, तब मैंने किया इसलिए था कि मेरे को डांस करना है। डांस करना है, हाँ ठीक है, कि मेरे को डांसर बनना है बड़े होके। पहले तो ये था कॉन्सेप्ट दिमाग में। फिर जब मैंने सॉन्ग सुना, ठीक है, मेरे को सॉन्ग अच्छा लगा, मैंने बाकी सॉन्ग सुने और फिर मैं साथ साथ में गाती थी, रोज़ प्रैक्टिस करती थी। डांसर्स भी साथ साथ में गाते हैं। ओके। तो फिर ऐसे 1 साल हुआ, फिर मेरे को ऐसा लगने लग गया कि मेरी डांसिंग से अच्छी मेरे वोकल्स या रैप है। ओके। तो मैंने उस चीज़ पे फोकस किया। फिर मैंने अपना फर्स्ट माइक लिया कि मेरे को सिंगिंग करनी है, मेरे को अच्छा लगने लग गया, सिंगिंग में बहुत इंटरेस्ट बन गया। फिर धीरे धीरे। ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂट्स ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ? नहीं, मैंने बताया था। ऐसे तो मेरी मम्मा मेरे को रोज़ देखते थे, वो कहते थे कि रोज़ सिंगिंग, सारा टाइम सिंगिंग पे चला जाता है। फिर मैंने उनको बताया था कि अब तो मेरे को ये परस्यू करना है। ओके। मतलब पहले ऐसे था कि नहीं यार मना कर देंगे, ठीक है, बट फादर साहब ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? पापा तो खुश थे। पापा ने तो मेरे को पूरा सपोर्ट किया था। पापा कहते जो करना है करो। ओके। मतलब मेरा पहले ऐसा था कि मेरे को के पॉप वाली साइड जाना है। ओके। मेरे पापा ने मेरे को इनकरेज किया। पापा कहते खुद कर, खुद के बेसिस पे स्टैंड कर, वहाँ पे जाके तो सबने नाम बनाया है, तो खुद अपना, अगर तेरे में टैलेंट है कि तो खुद लिख सकती है। वहाँ पे कंपनीज क्या कंट्रोल करते हैं, जैसे कि ठीक है वो ही आपको बताएंगे ये आपने सॉन्ग गाना है, आपको इतनी लाइंस मिलेंगी They will tell each and everything, yes. तो पापा कहते कि किसी को कंट्रोल करने क्यों देना, जब खुद लिख सकती है, खुद गा सकती है, तो खुद करना। तो अच्छा, लिखने की वो मोटिवेशन कहाँ से आती है? क्या सोचते हो आप उसके, मतलब जब लिखना होता है कुछ भी? या तो मेरे को किसी ने डिस्करेज किया हो या तो रैंडम मोमेंट्स पे, जैसे हम नॉर्मली लाइफ में देखते हैं, फ्रेंडशिप्स पे लिख लिया, ठीक है, कभी मन किया। मैंने 1-2 सॉन्ग्स खुद के बारे में भी लिखे हैं
जैसे नॉट एज अ वेस्ट मेरा सेकंड सॉन्ग था, वो फ्रेंडशिप पे बेस्ड था कि मतलब जैसे हम कहते हैं कितनी बार फ्रेंडशिप में बिट्रियल्स वगैरह से होता है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, इंटरनेट पे चलता है, तो उसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख के सॉन्ग्स लिखती हूँ मैं। कॉन्सेप्ट होना चाहिए रियल लाइफ बेस्ड, जिससे लोग रिलेट कर सकें। ओके, जो आपकी अभी एल्बम आई है जिसमें 4 सॉन्ग्स हैं ना, उसमें आपने क्या लिखा, क्या देखा, क्या क्या मतलब कि आपने सोचा था उसके बारे में, वो भी सबको बताओ। तो जो एल्बम का मेरा फर्स्ट सॉन्ग जो मैंने रिकॉर्ड करवाया था वो था आई लव माई सेल्फ। वो सॉन्ग था फन वाइब, जैसे मेरा मी एंड माई सेल्फ था, जी जी जी। वैसे सिमिलर वे में। मतलब मैंने अब देखा है कि सब ना लोग खुद को नहीं, लोगों को ज़्यादा देखते हैं कि हाँ लोग ये कह रहे हैं तो वो करेंगे, ये नहीं देखते कि उन्हें खुद क्या करना है। और मैंने बहुत लोग देखे भी हैं जो खुद के बारे में गलत बोलते हैं कि नहीं मेरे से ऐसा नहीं होता, मैं ये नहीं कर सकता। तो वो सॉन्ग इस बेसिस पे है कि आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए, आई लव माई सेल्फ से ही पता लग रहा है टाइटल से। मैं तो ये सोच रही हूँ मतलब कि ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਆ, ਬਟ ਇੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੁਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸਿਖਾਉਂਦਾ? ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਈ ਲਵ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਮੀ ਐਂਡ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲਬਮ ਆਈ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ रिएक्शन ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? मतलब स्टार्टिंग में तो सबका बहुत अच्छा था कि मतलब ऑब्वियसली मेरे फ्रेंड सर्कल का तो बहुत अच्छा था, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। बट हम बाकियों का कहें तो इतना अच्छा नहीं था कि मतलब होते हैं ना कि कई लोग जेलस होना शुरू कर देते हैं, ये तो कॉमन सा फैक्टर है, सब करते हैं। जब आप आगे बढ़ोगे ना वो तो करेंगे ही करेंगे, नो डाउट। तो मतलब ऐसा मैंने देखा, बहुत चेंजेस भी देख के जब मैंने सिंगिंग लाइन चूज़ की ना, मेरे को एक्चुअली पता लगा कि सब कैसे हैं। ठीक है, मतलब जैसे मेरे क्लासमेट्स हैं, अगर मैं बोल लूँ तो कोई भी इतना ऐसा नहीं होगा जिसको मैं अच्छे से बुलाऊँ या किसी के मेरे साथ अच्छे से बने। सबको मतलब ठीक है, सारे डिस्टेंट रहते हैं मेरे से। मेरे बस एक बेस्ट फ्रेंड है क्लास में, से 1-2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं बस। मतलब मेरी ऐसे सबके साथ नहीं बनती। एक तो मैं इंट्रोवर्ट खुद हूँ कि मतलब मेरे को ऐसे किसी के साथ इंटरेक्ट करना ऐसे अच्छा नहीं पर ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਕਸਟਰੋਵਰਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता कि नहीं इंट्रोवर्ट ठीक है? नहीं, होना पड़ता है, वो तो मूवमेंट्स पे डिपेंड करता है। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं खुल के कर पा रही हूँ, पर मेरे को ऐसा होता है कि नेचर, मतलब किसी का नेचर देख के मैं बुलाती हूँ कि मतलब मेरे को पता लग जाए कि वो कैसा है। अगर ठीक है, अगर अच्छी वाइब्स आ रही हैं तो मैं अच्छे से खुल के बात कर सकती हूँ। मैं एक बार कंफर्टेबल हो जाऊँ तो हो जाती हूँ। ओके ओके ठीक। बट अच्छा, वो ये बातें आपको आपने खुद सीखी है या आप पेरेंट्स ने बताई हैं भी कदे भी किते जाना है तो किसी ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਆ, ਬੁਲਾਉਣਾ भी है या नहीं बुलाना? नहीं, मतलब ये खुद अब बड़े होते हो तो खुद ऐसे सराउंडिंग से पता लगता रहता है। अब जैसे मतलब कॉमन सी टीनेज लाइफ ले लेते हैं हम, तो हम फ्रेंड्स देखते हैं, कोई भी साथ नहीं देता। हम कहें कि जो स्टार्टिंग से हो अभी तक साथ हो, बहुत कम लोग चलते हैं, 10 जने स्टार्ट करते हैं तो एंड में एक ही रहता है। ठीक है, ये तो रियल लाइफ पे बेस्ड है, खुद एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, तो ये चीज़ें तो टाइम के साथ पता लगती रहती है। कोई दोस्त छाड़ के भी गया? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा दोस्त छोड़ के गए हैं मेरे को। रीज़न मतलब रीज़न, अब मैं एक्चुअली मैं प्राइवेट पर्सन हूँ कि मेरे को ऐसा होता है कि मैं ठीक है, मैं सब कुछ नहीं बता सकती आपको, हम जितने मर्जी क्लोज हैं, बट कई चीज़ें ऐसी होती है कि ठीक है जब मैं कंफर्टेबल होंगी मैं तभी बताऊँगी। तो ऐसे अभी लास्ट ईयर की बात है, ऐसा कुछ हुआ था, तो मेरे को तब मेरे बहुत फ्रेंड्स ने छोड़ा है उसी बात पे कि मतलब कोई बात हुई थी, वो कहते कि तूने हमें नहीं बताई। मैंने कहा अब मैं सारा, मेरे को कंफर्टेबल होने तो दो एक बार, मैं नहीं दसना तो मेरी मर्जी। हाँ, तो वो कहते कि तू हमारे साथ भी देख रहे कंफर्टेबल होना। ये तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि कोई अगर आपको ऐसा कहे तो ब्लैकमेल कर रहा है, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है ऑब्वियसली, बट सारी जिंदगी है। हाँ, बट मैं कम बताती हूँ कि ठीक है जब मैं कंफर्टेबल हुई मैं बता दूंगी, वरना मैं नहीं बताती। तो फिर ऐसे बहुत दोस्तों ने छोड़ा है। बाकियों ने तो, मैं जब सिंगिंग लाइन में आई थी तब भी बहुत ज़्यादा मेरी लड़ाई हुई है। ठीक है, नैगेटिव लोगों तो दूर रहना ही चंगा है ना, अपना पीस ऑफ माइंड जरूरी आ। अच्छा, जी थोड़ी एल्बम आई है काइंड ऑफ, मैं तुहानू रैपर कहां या सिंगर कहां? रैपर अच्छा, तुहानू रैपर सुनना वधिया लगदा है ना? बट मी एंड माई सैल्फ तो मैनू लग्गिया सीगा कि शायद रैप घट सॉन्ग ज़्यादा, तुसीं कहा कि तुहाडा पहला गीत सीगा तां करके, क्योंकि तब मेरे को रैप की नॉलेज नहीं थी इतनी
मैंने जब Okay. पहले स्टार्ट किया था मेरा मेन लाइन ही ये थी कि मैंने सिंगिंग करनी है, Okay. रैपिंग का तो कोई वो ही था ही नहीं। Okay. बट फिर मैंने अपने फर्स्ट सॉन्ग में जैसे रैप एक पोर्शन आता है, हाँ, वो मैंने ऑन द स्पॉट लिखा। Okay. ठीक है, तो मेरे को लगा ठीक है मैं कर सकती हूँ। मैंने जब घर पे जाके प्रैक्टिस की ना, तब आई रियलाइज कि जैसे मेरे को सर कहते तेरी वॉइस थोड़ी सी डीप काइंड ऑफ, हम कहते हैं ना कि सिंगिंग पे इतनी ज़्यादा सूट नहीं करती, वोकल्स लेट पकड़ती है। तो फिर मैंने कहा ये मेरी स्ट्रेंथ बन सकती है रैपिंग वाली साइड में। रैप फिर- में ऐसा ही होता है। रैप में ऐसा होता है, रैप में आपको वोकल्स या फिर स्केल की इतनी ज़रूरत नहीं होती, मेन तो फ्लो और कितनी फास्ट आप वर्ड्स को प्रोनाउंस सही से कर सकते हो, वो होता है कितना वो अच्छा इंग्लिश flow में है। आपका अच्छा है हाँ जी। ਹੈ ਨਾ। तो ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਪ ਸੁਣਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ सॉन्ग या रैप। सॉन्ग सुनाती हूँ। डांस जी डांस। उसमें जो मैंने आपको अभी फर्स्ट सॉन्ग इंट्रोड्यूस किया था, आई लव आई लव माई माई सेल्फ जी। I love myself when I treat me right. I love myself when I make me smile. I love myself like no one ever did. I love myself and I always will. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ। ये इसी बेसिस पे है कि आई लव माई सेल्फ, मतलब जैसे पहले किसी ने मेरे को जितना प्यार नहीं किया, मैं उससे ज़्यादा खुद को करती हूँ। मैं खुद को प्यार करती हूँ एंड आई विल मेक मी स्माइल। मैं खुद को खुश रखूँगी, ऐसा कि मतलब खुद पे डिपेंडेंट होना चाहिए। ये तो नॉर्मल लाइफ मैंने रिलेटेबल है थोड़ा सा। ਹਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਹੈ हाँ, ਨਾ। कि सब आपको कोई आपकी सराउंडिंग्स खुश नहीं रख सकती जब तक आप खुद को नहीं रख सकते। ਓਕੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਲਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਿਦਮ ਨਾ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਵਾਂ, हाँ है ना। सो वो भी सीन दसना तुसी। हाँ, बट अगर जब हम एक्टिंग की बात करते हैं, कितने लोग सामने खड़े होते हैं हाँ। और आपको एक्ट करना पड़ता है, चाहे वो आपके एक्चुअली इमोशंस हों भी ना, तो फिर मेरे को हंसी आ जाती है। तो मतलब मैंने एक्टिंग वाली साइड में कभी ऐसे देखा नहीं, बट अगर आगे इंडस्ट्री में ग्रो करूंगी, इंटरेस्ट बनेगा तो ऑब्वियसली एक्टिंग क्योंकि की साइड। इन फ्यूचर तुसी शोज करने आ, उससे तो बहुत सारी ऑडियंस होनी है ना, बहुत सारे लोग होने, उन्होंने सामने परफॉर्म करना, सो ये चीज़ तो तुहानू कढनी पैनी है अपने। मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब जब एक बार स्टार्टिंग हो जाए इस वाली साइड में और आपको थोड़ा सा प्यार वगैरह ऑडियंस से मिलना शुरू हो जाए ना, तो आप खुद पे कॉन्फिडेंट हो जाते हो, तो फिर ये चीज़ें करने में ऐसे शर्म नहीं आती इतनी ज़्यादा जितनी पहले पहले स्टार्टिंग में आती है। बट जब आपको एक बार हो जाए कि हाँ ठीक है, लोग भी आपसे सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, तो फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है कि मैं कर लूँगी। तुहानू अपने आप पे कॉन्फिडेंस हैगा कि मैं कर लूँगी? हाँ ऐसे तो है, इसीलिए ये साइड चूज़ की। मतलब टफ, पहले यही डिसीजन लेना टफ होता है कि इस साइड में जाना है, क्योंकि हमें इस साइड का पता है कि कितनी, एक तो डार्क, मतलब बहुत बुरी साइड भी हम कह सकते हैं कि कंट्रोवर्सीज वगैरह में जैसे एक बार फंस जाए पर्सन, डरावनी भी है थोड़ी सी ये साइड, पर बहुत अच्छी भी है अगर आप इसमें अपनी इमेज वगैरह सब मेंटेन करके चलो, है ना। तो पहला डिसीजन तो यही टफ होता है कि आपने इस साइड में जाना है कि नहीं। एक तो ये बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस, डिटर्मिनेशन लेती है, टाइम बहुत मंगदी है, टाइम बहुत ज़्यादा, बहुत चीज़ां पेशेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए, बहुत चीज़ां छड्डनियां पैंदियां ਤੁਹਾਨੂੰ, है ना। फ्री टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं अपने फेवरेट सिंगर्स, मॉडल्स वगैरह के पॉडकास्ट सुनती हूँ, या तो ओके, नहीं तो राइटिंग, पोएम्स लिखती हूँ मैं, मेरे को अच्छा लगता है लिखना, तो ठीक है। और अगर मैं खुद से बातें करना तो बहुत अच्छा लगता है। खुद ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? तो ਮੈਨੂੰ भी दसो यार, मैं भी करिया करी। मतलब शीशे के सामने खड़ी हो जाती हूँ, हाँ। मेरे को किसी ने कुछ बोल दिया, हाँ। अगर उस टाइम पे लड़ाई हुई है तो मैं शायद ऐसे जवाब ना दे पाऊँ, पर शीशे के सामने खड़े होकर मैं इतने अच्छे अच्छे जवाब देती हूँ। ਲਾਈਕ ਫॉर एग्जांपल मान लो एग्जांपल ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ, हाँ हाँ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ भी, तो ਤੁਸੀਂ शीशे सामने खड़ के की बोलोगे, की गल करोगे? जस्ट एग्जांपल। मतलब मेरे को उसने ऐसे कैसे बोल दिया, मैंने ऐसा ऐसा किया था उसके लिए, उसने मेरे को इतना बोल दिया, अब तो मैं उसके पास जाऊंगी ही नहीं। मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। बहुत बोलती हूँ मैं, मतलब खुद को, मतलब अगर मैं देखूँ ना खुद को अकेले में, तो मैं सोचती हूँ कि मैं ज़्यादा खुश रह सकती हूँ अगर मैं अकेली हूँ कि लोगों के साथ, कि मतलब लोग मेरे को उतना नहीं खुश कर सकते जितना मैं खुद रह सकती हूँ। मैं खुद के साथ बातें करके सारा दिन निकाल सकती हूँ, मैं ऐसे बातें करती हूँ। वेरी नाइस। हाँ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ, जिन्नी सुनन से अच्छी लगती भी ना, इन्हों अप्लाई करने च नहीं मजा आऊगा। बहुत ज़्यादा। अगर आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना है ना, तो पहले खुद के साथ बातें करना स्टार्ट करना होगा। शीशे के सामने खड़े हो, खुद से बातें करो, बहुत कॉन्फिडेंस आता है। ਤੁਹਾਡਾ कॉन्फिडेंस इसी तरीके ने ਵਧਿਆ? हाँ, मैं पहले क्लास में मेरी फ्रेंड्स अगर लड़ाई होती थी मैं रो पड़ती थी। ओके। बहुत, मतलब कोई मेरे को जानता भी नहीं है ना, वो मेरे बारे में गलत बोल देता था, मैं तो भी रो पड़ती थी। ओके, हुन फिर
अब क्या होता है, या तो मैं इग्नोर कर देती हूँ, अगर मेरे फेस पे बोल रहा है तो मैं आगे से जवाब देती हूँ। ये चेंजेस, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे, हम कहते हैं ना डिप्रेस्ड हो जाते हैं हम, ये भी एक स्टेज होता है लाइफ का, तो बहुत ज़्यादा ऐसे रहने लगी थी। बट 8th में आके एक सिचुएशन हुई थी कि मैं वाइस कैप्टन बनी थी अपने हाउस की। तो मेरे को हो गया ठीक है, अब मेरे पास पोजीशन आ गई, तो कॉन्फिडेंस ऑब्वियस आता है। सबने मेरे को कहा एरोगेंट होगी, बट मेरे को लगा कि मेरे को यही साइड चाहिए थी अपने आप में, कि कॉन्फिडेंट हूँ मैं, जवाब दे सकूँ सबको, खुद के लिए स्टैंड ले सकूँ। फिर सबने मेरे को एरोगेंट बहुत बोला, बट मैं ठीक है, मैं सेटिस्फाई थी अपनी इस साइड से। फिर मैंने यही साइड अपनी 9th 10th तक कंटिन्यू रखी, खुद से बातें करती रही और कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। अब मैं इतना नहीं ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬੋਲ ਦੋ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਯਾਰ, 15 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ, मतलब ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਰਿਕਾर्ड करते हो? जब भी मैं अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ ना, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे करती हूँ रिकॉर्ड ये ऐसी वीडियोस कि जो मैं कोई चीज़ें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। ओके। कि मतलब हाँ, मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, लिखने का मेरा मन नहीं है। कैमरा ओपन किया, खुद के साथ बातें की, अगर रोना है तो भी कैमरा के आगे रो लिया कि हाँ खुद के साथ, मतलब मैं खुद की कंपनी जैसे ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। तो अब मैं किसी को नहीं बता रही कोई बात, अब मन में रहेगी तो कितना ज़्यादा बोदर करती है। तो चाहिए होता है कि कोई सुने, पर कैमरे से अच्छा कोई भी नहीं सुन सकता, कैमरे और मिरर से ज़्यादा। अच्छा, इतना नहीं होता भी मैं बहुत खज्जल हो गया, मतलब कि मैं ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਹਾਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੀਤ ਗਾ ਲਵਾਂ, ਕੋਈ मैं मतलब कि कोई भी सॉन्ग। अगर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ ना चीज़ों से, तो मैं एस्केप करने के लिए सिंगिंग ही चूज़ करती हूँ, कि प्लेलिस्ट उठाई, लगाई स्पीकर पे, गाने गा लिए, बस। जब तक मैं रिलैक्स नहीं होती, 5 घंटे लग जाएं, 6 घंटे लग जाएं, ऐसा होता बहुत बार हुआ है। मेरी एक प्लेलिस्ट है, मतलब इसी बेसिस पे मैंने बनाई थी, वो 10 आवर्स की है। तो और मैंने वो, मतलब मैं गाती रही, मतलब जब तक सारे इमोशंस बाहर नहीं आ गए, जब तक मैं ठीक नहीं होगी, मैं तब तक गाती रही। बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है। जो भी चीज़ हमें पसंद होती है ना, वो चीज़ हम करें, अगर हम डिप्रेस्ड में हैं तो हम उन चीज़ों से सबसे ओवरकम कर लेते हैं। वेरी नाइस। अच्छा, पंजाबी गीत सुनते हो रिदम? हाँ, ऐसे तो करण औजला को बहुत सुनती हूँ, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। ठीक है जी, ठीक है। फिर करण औजला का किहड़ा गीत सुनाओगे? बॉयफ्रेंड सुनाऊँ? अब जरूर जी जरूर। सिरे उत्ते कहंदा चुन्नी रखिया करो, पहला विसी और हो शरीफ कर गया, मापिया ने कहंदा बड़ा सोहना पालिया, जांदा जांदा थोड़ी भी तारीफ कर गया, अगली वारी मैं आऊं कर दिया ना, करनी नी गल कहंदा पर दिया ना, मेरे तो हुन होनी नी उड़ीक लगदा, भाभी नू दिखाता कहंदी ठीक लगदा, नी माए दिल ले गया, यही है ना, ले गया नी दिल ले गया कोई। हाय हाय, ठीक है ठीक है। अच्छा, सिर्फ इंग्लिश और पंजाबी, हिंदी, हरियाणवी ये गीत भी गा लेंदे हो कि नहीं? हिंदी और हरियाणवी भी। हिंदी ते हरियाणवी भी, ये मैंने नवी चीज़ पता लगी है। ठीक है, फिर पहला हिंदी मतलब कि गीत सुनाओगे या फिर हरियाणवी? हिंदी हिंदी ठीक है। कौन सा सुनाऊं? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ। Let's just get this straight for a second. I'ma work even if I don't get paid for progression. I'ma get it. Everything that I do is electric. I'ma keep it in a motion, keep it moving like kinetic. Put this shit in a frame, better know I don't blame everything I say. Man, I see the play. Let me elevate this. Is a prank? Heavy working on a plank. Rhymes inclined to break your spine. They say that I'm so fine. You could not match my grind. Please, you know, no waste my time. वेरी नाइस, वेरी नाइस। कुड़ी दी इंग्लिश बड़ी अच्छी है ते रैप भी बहुत अच्छा गा रहे हो। लाइक किमें शुरू तो इंग्लिश मीडियम पढ़े हो इस करके, या फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है भी करना ही यही है बस, जितना मर्जी? हाँ, जहाँ पे प्रैक्टिस होगी वहाँ पे। ओके। कि मतलब प्रैक्टिस इसकी ज़्यादा की, तो अब तो मैं जब पंजाबी गाने लगती हूँ वहाँ पे भी इंग्लिश टोन निकल आते हैं। ओ राइम जी वो बन जाती होनी है ना। ठीक है। फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ कौन कौन है रिदम ਤੁਹਾਡੇ? मेरे दादू दादी हैं, मेरे मम्मा पापा हैं, मेरी एक छोटी सिस्टर है और मैं। ओके ठीक है। छोटी सिस्टर सुनती होंगी ਤੁਹਾਡੇ गाने कि नहीं? हाँ, वो अगर मैं कहूँ कि मेरे सबसे बड़ा फ़ैन है तो वो है। ओके। बहुत, वो मेरे गाने, मैं अपने गाने कभी भी रिलीज़ करने के बाद नहीं सुनती। क्यों? मतलब मेरे को ऐसा, मैं बहुत ज़्यादा, जब भी मेरा कोई गाना सुन रहा होता है ना, मैं शर्मा के भाग जाती हूँ। मैं अपने गाने बहुत रेयरली होता है सुनती हूँ। हाँ। मेरी बहन सारा दिन लगा के उनको सुनती है। ओके। सारा दिन। अभी मेरा गाना रिसेंटली जो पहले आया था अभी, वो था बैड ड्रीम्स। ओके।
उसकी शूटिंग पे गए थे, ਹੂੰ तब भी वो वहाँ पे इतने इंटरेस्ट से, सबसे इंटरेस्ट से उसने मेरे को देखा है वहाँ पे। ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। हाँ, ठीक सबसे है। बड़ी फैन वो है। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ? पहले मैं अपने आप के साथ ही जब हम पहुँच जाते हैं स्टूडियो तब सबको पता लगता है कि क्या है, ਓਕੇ वरना मैं पहले कुछ भी रिवील नहीं करती, क्योंकि मेरे को ऐसा होता है मैं जितना ज़्यादा सुनाती हूँ ना मैं उतना ज़्यादा भूल जाती हूँ। ਓਕੇ कॉम्पोजिशन में मेरे को ऐसा होता है कि बस मैंने एक बार अपने दिमाग में सोच ली, ਹੂੰ अब किसी को नहीं बताना। ਓਕੇ एक तो मेरे को घर पे मैं कहूँ सिंगिंग करने में, अगर मेरे को किसी आप अनजान लोगों के साथ छोड़ दो ना, मैं वहाँ पे ज़्यादा अच्छी सिंगिंग कर सकती हूँ रैदर देन घर पे। ऐसा क्यों? मतलब मैं जिनके साथ कंफर्टेबल होती हूँ मैं उनके साथ बहुत शाय हूँ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਰੈਂਡਮਲੀ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ, हाँ, ਤੇ ਤਾਂ जिनके ਕਰਕੇ साथ मैं रैंडमली मिलती हूँ ना उनके साथ तो मैं वाइब कर जाती हूँ जल्दी, ठीक है। बट जिनको मैं पहले से जानती हूँ उनके साथ मैं थोड़ी थोड़ी शाय होती हूँ, ऑकवर्ड भी जल्दी हो जाती हूँ। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं तो किसी को नहीं बताती। क्यों? मेरे को ऐसा होता है कि हम किसी को बताए कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि हम, अगर मैं अपने फ्रेंड्स को बताऊँ तो वो क्या करते हैं, बात अपने, अगर उनके आगे फ्रेंड्स हैं उनके पास गॉसिप का टॉपिक बन जाता है, ठीक है। तो मेरे को ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी को दिखाऊं कि मैं अंदर से ऐसे वीक हूँ या पढ़ रही हूँ अभी वीक। नहीं, मेरे को आगे से ऐसा लगता है कि मैं सबको दिखाऊं मैं स्ट्रांग हूँ, कुछ भी हो जाए मैं रोती नहीं ऐसा, बट अंदर से ऑब्वियसली सबका एक वीक कॉर्नर होता है कि हाँ ठीक है, जहाँ पे रोना पड़ता है। तो वो मैं घर पे इवन मम्मा पापा को भी नहीं शो करती। जब बहुत ज़्यादा सब कुछ हो जाए ना, तब ब्रेकिंग पॉइंट आ जाए कि अब तो बस रो पड़ूंगी, मैं किसी को भी मिलूंगी तो बस पापा मेरे को आके घर पे आके मिलते हैं, हग करते हैं, कुछ भी ऐसा होता है तो मैं बस रो पड़ती हूँ। ठीक ਫਿਰ है, ਪਾਪਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ? ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? नहीं मैं पूरा रीज़न नहीं बताती ऐसे। मैं मतलब ऐसे ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਰੱਖੂੰਗਾ, है ना? मैं शेयर कम करती हूँ एक्चुअली। मेरे को ऐसा होता है कि खुद प्रॉब्लम से डील करना आना चाहिए एक तो, ऊपर से शेयर करने से मेरे को ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स ना आगे बढ़ जाती है। अगर किसी को आपको कुछ कहना भी हो ना, आगे जाके तुम ऐसे बातें कोई शेयर कर दिया अभी, आगे जाके तो वो पर्सन तुम्हें उसी चीज़ पे पॉइंट आउट करता है, तेरे साथ ऐसा भी हुआ था, तो तू ही रीज़न होगी कहीं ना कहीं। ਵੈਰੀ ਟਰੂ, ਵੈਰੀ ਟਰੂ। 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ मतलब बिल्कुल फ्री, या तो मैंने आपको पहले बताया ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? हाँ, शो अपने रियलिटी शोज देखे ऐसे, वरना राइटिंग तो अच्छी लगती है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਕअप ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰੈसेस ਦਾ शौक है? ड्रेसेस का तो बहुत शौक है। अगर आप मेरे को अभी छोड़ दो कि तू शॉपिंग करा, अनलिमिटेड पैसे हैं, मैं सारा कुछ ले आऊँ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ 2 ਕਰੋੜ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? शॉपिंग, मतलब कपड़े लूँगी। हाँ, पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी कपड़े। ਮੈਨੂੰ ਗਿਣਾਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲਏ। नहीं, ज़्यादा ही हो जाएंगे। 10 ਲੱਖ ਦੇ? 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲਏ। ਓਕੇ हाँ ठीक है। अभी मेरे को रिसेंटली नया शौक आया लिप ग्लॉस का, ਓਕੇ। वो लूँगी। 1 ਲੱਖ ਦੀ ਲਿਪस्टिक लिप ग्लॉस हो गया, ठीक है, डन। और फ़ोन लूँगी एक तो। ओ माय गॉड, ठीक है जी। मेरे को परफ्यूम्स का बहुत शौक है। ठीक है, वो बहुत महंगे आते हैं। हाँ, ठीक है। बैग्स लूँगी अपने फेवरेट ब्रांड्स जैसे शनेल। हाँ, एक तो वो कौन सी YSL की हील्स है ना, Okay. वो बहुत चली है, मेरे को वो भी चाहिए। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦਾ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 50-60 ਲੱਖ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ? ज़्यादा चला गया है ना? हील्स ज़्यादा महंगे, बैग्स ज़्यादा, करोड़ चला गया। एक मान लो 1 करोड़ चला गया, 1 करोड़ फिर भी रह गया, फिर ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? मैं फिर अपनी कोई अच्छी सी वीडियो रिकॉर्ड करवाऊंगी उससे। मेरे को एक तो अपनी वीडियो रिकॉर्ड, ऐसे अच्छी फोटोज होते हैं ना, हम कहते हैं एक अच्छा फोटो सेशन। हाँ, फोटो सेशन कुड़ियां ना ਹੁੰਦਾ वैसे, है ना? बहुत ज़्यादा शौक होता है, होना भी चाहिए। मतलब मैं कहती हूँ कि लड़कों की लाइफ कितनी बोरिंग होगी, हमारे पास कितना कुछ है करने को। यार ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ। कितना कुछ है हमारे पास करने को। झुमके ले लिए, है ना, और मेहंदी लगा ली, हम कितना कुछ कर सकते हैं। फोटोज खींच ली, रेडी हो गए घर पे, अगर बोर हो रहे हो मेकअप कर लिया, कुछ नया ट्राई कर लिया। लड़के क्या कर सकते हैं? वो देखो कैसे देख रहे हैं हमारे सर। ठीक है, जे ਤੁਹਾਨੂੰ
ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੈਸਡ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। हाँ बहुत ज़्यादा। ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਹੋ? नहीं ਨਹੀਂ, नहीं ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? नहीं ज़्यादा नहीं, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि सारे ठीक है कोई प्रॉब्लम आ गई भगवान का नाम ले लिया सॉर्ट हो जाएगा सब, मैं ऐसे नहीं मानती। मैं मानती हूँ कि जो सारा कुछ होना है हमारे साथ वो जो हमने कर्म किया है, जिसे कर्मा हम कहते हैं, उस पर बिलीव करते हैं कि भगवान ने हमें छोड़ दिया, जाओ जो करना है वो करो, बस जो करोगे उससे वैसे ही रिजल्ट मिलेगा। बस ऐसा होता है, भगवान तुम्हारा बार बार साथ देने नहीं आता, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ है नहीं, परमात्मा है नहीं फिर? है, हाँ। उन्होंने ही हमें बनाया है, पर मैं ये नहीं मानती कि ठीक है कोई प्रॉब्लम आई भगवान का नाम लिया तो ठीक है, अगर आप प्रॉब्लम से बाहर आए हो तो भगवान लेके आया, नहीं। साढ़े कर्म। हाँ, मैं कहती हूँ उसने हमें छोड़ दिया बस। वो कहते हैं कि खुद जैसे जीना चाहते हो वैसे जियो, जो कर्म करने हैं वो करो, जो आप कर रहे हो उसका ही रिजल्ट आगे जाके आपको मिलेगा। प्रॉब्लम से आप बाहर आ रहे हो तो आपने कोई पहले अच्छा काम किया होगा तो आप प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हो। तो मैं कहती हूँ कि हमें लाइफ खुद पे जीनी चाहिए, ऐसे भगवान पे डिपेंडेंट होकर नहीं। ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਟਰਸਟ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਜਿੱਤੇ मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकती हूँ? मतलब मैंने पहले तो बहुत था कैसे अपने फ्रेंड्स पे बहुत ट्रस्ट किया है ब्लाइंडली मैंने बट कोई फ़ायदा नहीं। हाँ। कोई फ़ायदा नहीं है, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मैं उसके बाद से ही बहुत प्राइवेट हुई हूँ, पहले तो मैं सबको बता देती थी, जो मन में आया सब बता दिया, बट फिर मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अपनी अगर आप कुछ अच्छा कर भी रहे हो ना, अब जैसे सिंगिंग मैंने की, किसी को नहीं बताया था मैंने ओके कि मैं जा रही हूँ रिकॉर्ड करवा रही हूँ फर्स्ट जब सॉन्ग। रिकॉर्ड हो गया उस तो बाद? हाँ, जब आ गया तब बताया सबको कि जब रिलीज होने वाला था, डेट्स आ गई थी, मैंने कहा मेरा गाना रिलीज हो रहा है, सारे कहते रियली ये बताया नहीं तुमने? हाँ। है ना। ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ? वो तो बहुत एक्साइटेड थी, मतलब मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड वो थी। ओके। बहुत खुश थी वो, उसका रिएक्शन था कि वाह यार तू तो अब स्टार बन जाएगी। कहती कि मेरे को लगता था तो कर सकती है। कहती मैं बहुत खुश हूँ। जब मेरा सॉन्ग आया, ऐसे तो मेरे एक सीनियर भी हैं, 2 सीनियर हैं, एक के साथ अभी मैं थोड़ी सी नहीं बनती, एक के साथ अभी भी बहुत अच्छे कांटेक्ट में हूँ। उन्होंने बहुत प्रमोट किया है, मतलब अपने स्टोरीज़ पे लगाया, फ्रेंड्स सबको बताया, बहुत सपोर्ट किया, जितना मेरे को सपोर्ट मिल सकता था अपने फ्रेंड से मिला है। बट फिर उसके बाद हम कहते हैं कि लड़ाई वगैरह तो सब खराब हो जाता है ऐसे। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਰਿਦਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਣਾ ਬਣਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋਚਿਆ ਕਦੀ? नहीं इतना नहीं सोचा। ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ, क्योंकि ਤੁਸੀਂ सुलझे हुए शख्स लग रहे हो मैनू, है ना? हाँ, तो उसके पीछे बहुत रीजंस होंगे ना, आप ये देखो। मतलब मैं अपनी अगर सही कहना होगा तो मेरी 7 तक तो ऐसे कोई लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी। ओके। मतलब बहुत डिप्रेस्ड रहने वाली लड़की थी मैं, कि थोड़ी सी बात होती है चुप जाती है। अब कहने वाले तो बहुत लोग होते हैं, तो मेरे को बहुत चुपती थी, मैं घर पे आके बहुत रोती थी। 7th में तो मेरी मम्मा ने देखा है कितना रोई हूँ मैं घर पे आके। फिर 8th में मैंने आपको बताया मैं वाइस कैप्टन बनी, तो 1 साल वो बहुत अच्छा गया, पर वो जल्दी भी गया। सिंगिंग में मैंने तभी की, मेरा फर्स्ट सॉन्ग भी तब रिलीज़ हुआ। 9th में आके सब दोबारा वैसे हो गया। दोबारा मैं वैसी हो गई कि मतलब वो 1 साल के लिए पोजीशन होती है, उसके बाद वो चली गई, मतलब पोजीशन जाने का भी नहीं, वैसे ही सब कुछ दोबारा एक मोरल भी थोड़ा समटाइम्स ना डाउन हो जाता, ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ लाइफ स्टार्ट हो गई। तो फिर प्रॉब्लम्स तब आनी शुरू हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग, इवन पेरेंट्स के साथ भी बहुत लड़ाई होती है। और मैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे हूँ कि मेरे साथ लड़ाई होगी मैं पापा की मैं बोलती हूँ, मतलब हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा रिबेलियस होता है। हाँ। क्यों लड़ते इन्हें लड़ाकू क्यों? मेरे को ऐसा होता है कि मेरा पॉइंट बराबर सुना जाए। मेरे को हम कहते हैं ना कि जो बड़े कह रहे हैं वो मानना चाहिए। मैं कहती हूँ क्यों मानना चाहिए, क्वेश्चन करती हूँ मैं कि ठीक है अगर पीछे कोई रीज़न है तो बताओ। मतलब ब्लाइंडली नॉर्म्स फॉलो करने में कोई पॉइंट नहीं है। मैं कहती मेरे को यही हमारी जनरेशन के बारे में बात अच्छी लगती है कि हम ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, सब हम क्वेश्चन करते हैं कि ये चीज़ क्यों हो रही है, ये ट्रेडिशन क्यों है। तो मैं भी वैसी हूँ, थोड़ी सी रिबेलियस वे में हूँ। बट ठीक है, मतलब ज़्यादा तो नहीं लड़ते? नहीं, मतलब अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो ना कि मेरे को कोई सुन नहीं रहा, कि मेरे को पारा हाई होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट बात यह है कि मैं जब बोलती हूँ तो मेरे कोई ना कोई पीछे रीज़न होता है कि मैं बोल रही हूँ, तो मेरी या तो किसी के साथ लड़ाई हुई है या मैं पहले से ही नहीं ठीक, तो मैं बोल रही हूँ। ठीक है एकदम कि
ਐਕਟਿੰਗ ਵੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਦੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ अगर ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ अगर ਆਬਵੀਅਸਲੀ। मौका मिले तो इंग्लिश सीरीज कोई अच्छी सी। ਓਕੇ, हाँ, ਕਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ? मेरे को सीरीज ऐसी पसंद है जो रियलिटी पे बेस्ड, जो रिलेटेबल हो। ओके। जैसे अभी एक एडोलेसेंस थी, मूवी थी, बहुत फेमस हुई थी, एमी विनर भी उससे निकला। वो भी आई गेस 15-16 ईयर ओल्ड का बच्चा था जिसने एक्टिंग की थी। तो मेरे को ऐसी मूवीज पसंद है जैसे टीनेज लाइफ पे बेस्ड हो, जिसमें इमोशन शो, ठीक है। मेरे को वैसी मूवीज पसंद है कि जिसमें हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। अब देखो लव वगैरह वाली हॉरर तो सबको पसंद होती है। हाँ, ये तो अलग जॉनरा चला गया। ये सारे अंदर कॉमन जे आ गया है ना। हाँ, बट मेरे को रियलिटी पे बेस्ड हो, जिसको देख के मैं खुद को फील कर सकूं कि मैं उस मूवी में काम कर रही हूँ, मैं उसको रोऊं, उस मूवी को जीऊं, ऐसी मूवीज। नाइस। कोरोना ने की सिखाया ਤੁਹਾਨੂੰ? मेरे को सिंगिंग, मेरे को सबसे बड़ी पावर मेरी लॉकडाउन में मिली है। हाँ। सिंगिंग की। ओके। मेरे को लॉकडाउन में मतलब मैंने खुद में भी चेंजेस देखे हैं। मैं लॉकडाउन में बहुत वीक हो गई थी इमोशनली, ड्रेन हो गई थी बहुत ज़्यादा। एक तो घर में रहना सारा दिन, उसके बाद जब एकदम से स्कूल गई, सब ऊपर हमारी शफलिंग हो गई क्लासेस की, नए सब लोग नए, डर लगता था देख के। मतलब मैं तो वैसे बहुत डरती थी पहले, कॉन्फिडेंस तो था ही नहीं मेरे में। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼? ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਹੈ ਹੀ नहीं गी? बहुत ज़्यादा लगता है। अब मैं सबसे बड़ा लेसन यही सीखा लाइफ से कि मैंने आपको बताया कि खुश रहना खुद के साथ ही रह सकता है। हाँ, अपने आप में आप जितना मतलब खुद को रिस्पेक्ट दे रहे हो, जितना खुद को अच्छा ट्रीट कर रहे हो ना, उतना करो। मैं कहती हूँ कि कई बार पेरेंट्स से झूठ बोलना भी पड़े ना इस एज में, बोलो, क्योंकि वो गुस्सा अपना भूल जाएंगे 1-2 दिनों में। बट जो मोमेंट्स आप मेमोरीज क्रिएट करते हो, मैं ऐसे नहीं कह रही कि बच्चों को कि बिगड़ जाओ आप, नहीं। मतलब कई बार मतलब जैसे कोई पेरेंट्स होते हैं वो फ्रीडम ही नहीं देते अपने बच्चे को, एंड मैं टोटली उसके ऑपोजिट हूँ। ਤੁਹਾਡੇ पेरेंट्स ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉपर फ्रीडम ਦਿੰਦੇ ਆ है ना? मतलब प्रॉपर नहीं कह सकते, सिंगिंग वाली लाइन में तो बहुत ज़्यादा इन्होंने मेरे को दिया है, जितना सपोर्ट दिया है मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ इस वाली साइड में अगर कहूँ तो। बट देखो हर बच्चे की अपने पेरेंट्स के साथ अलग लाइफ होती है, ठीक है, लड़ाई भी होती है। तो मेरी भी यही प्रॉब्लम है। मेरे को पसंद है आप मेरे को स्कूटरी दो और मेरे को बाहर जाने दो अपने दोस्तों के साथ। अगर लड़के जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं? नहीं जाते लेकिन। हाँ, जाने नहीं देते। अभी तो 18 से पहले जाने भी नहीं अरे नहीं, मेरी जैसे सारी फ्रेंड्स है ना, सब जाते हैं। हाँ। तो मेरे को उनको देख के हम कहते हैं ना कि आज ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ शिकायत लगाउने हैं, ठीक है, डन रह गया। पर बात यह है वो मेरे को जहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं वहाँ पे कर रहे हैं। हाँ, उतने कर रहे हैं। हाँ, मतलब जेन्युइनली कोई डर होगा पीछे, मैं वो नहीं कह रही। बट एक तो हमें जैसे मेरे को ये विमेन्स राइट हम कहते हैं ना, इसमें मेरे को बोलना बहुत अच्छा लगता है। मैंने स्कूल में अपने बहुत बार बात की है कि ठीक है लड़कों को ये करना अलाउड है, हमें क्यों नहीं है। हाँ। अब जैसे लड़कों को हमें कहते हैं ना कि जैसे सलवार सूट वगैरह हमें यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, तो हमारे स्कूल में नहीं है वैसे तो। हमारे स्कूल में तो पैंट है +1 +2 में, बाकी स्कूल्स में जैसे होती है। तो लड़कों को क्यों नहीं धोती वगैरह पहनाते आप, ट्रेडिशनल उन्हें क्यों नहीं? मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऐसे, मैं इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव हूँ इन टॉपिक्स को लेके कि ठीक है, मतलब मम्मी पापा कभी कह भी देना कि तू लड़की है, ऐसा नहीं होता। तो मेरे को ऐसा होता है कि नहीं, आपने लड़की क्यों कह दिया, आप मेरे को वैसे रोको। हाँ। लड़की कहने से क्यों रोक रहे हो? ठीक है ना, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ? मैं अपने आप से ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैं मतलब मैं मेन मोटिव लाइफ का हम कहते हैं कि होता है कि अपने ड्रीम्स पूरा करना, मैं कहती हूँ वो नहीं होता। की होता पे? खुश होना। ओके। मतलब कई बार सबको नाराज करके भी आप खुश हो सकते हो ना, तो डू इट। बट किसी का दिल नहीं ना दुखा सकते असी। मतलब दिल दुखाना ऐसे, आप ऐसा कौन सा काम करने लगे हो? हाँ। दिल दुखाने की बात नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स आपको अपोज कर रहे हैं, समझाओ उन्हें। पेरेंट्स तो आपके समझेंगे कहीं ना कहीं। कई पेरेंट्स होते हैं कि जो अब हम कहते हैं अब्यूजिव पेरेंट्स टाइप, उनका दिल दुखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पेरेंट्स वैसे मैंने जेन्युइनली देखा, अपने पेरेंट्स देखे तो मैं उन्हें, हाँ ठीक है 2-3 दिन लड़ाई होती है, फिर उसके बाद वो समझ जाते हैं कि अब मैंने सिंगिंग का था। मेरी मम्मा बिल्कुल नहीं थे मेरे साथ, कहते सिंगिंग नहीं, पढ़ना है। अच्छा। मेरी मम्मा जैसे, मम्मा तो पढ़ाई, मम्मा बहुत पढ़ते हैं। मेरी मम्मा अभी भी CA कर रहे हैं। ओके। बहुत पढ़ते हैं मेरी मम्मा, 18 घंटे पढ़ सके इतनी कैपेसिटी है। हाँ। मेरे से 1 घंटा नहीं बुक पकड़ी जाती। बहुत अपोजिट हूँ मैं। हाँ। तो फिर उनका था नहीं, सिंगिंग नहीं, मैं सपोर्ट नहीं करती। हाँ। बट फिर मैंने मिल के समझाया, मैंने भी बहुत लड़ाई भी बहुत बार हुई। हाँ। बट समझाया, समझ गए। अब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मम्मा ने भी सपोर्ट किया ना कहीं ना कहीं। तो ठीक है, अपने पेरेंट्स को समझाओ। बट अगर आपके पेरेंट्स नहीं हैं, बाकी लोग हैं, उनका दिल दुखाओ। उनका मैं नहीं कहती, क्योंकि हम जो ये अपने फ्रेंड्स का सोच के रुक जाते हैं चीज़ें करने से,
वो नहीं करना चाहिए, हम्म क्योंकि कब तक साथ देंगे वो। मतलब ऐसा नहीं कि कई फ्रेंड्स होते हैं साथ देने वाले, अगर वो आपको सही चीज़ सिखा रहे हैं सीखो, पर अगर वो आपको रोक रहे हैं ना आपकी लाइफ जीने से, अगर आप खुश नहीं रह पा रहे, मत रहो उस चीज़ में। स्टे अवे फ्रॉम देम। हाँ, अपनी खुशी के लिए जिसका दिल दुखा सकते हो दुखा दो, पेरेंट्स को छोड़ दो, उन्हें समझाओ, बट बाकी जो चीज़ खुशी दे वो करो। ओके। अगर आप वो चीज़ नहीं करोगे तो आगे जाके हमने देखा है कितने जैसे सुसाइड केसेस आता है, ये भी इन्हीं रीजंस की वजह से आता है कि बच्चों को अपने ड्रीम्स नहीं फॉलो करने दिए। तो मैं कहती हूँ कि जो काम में खुश हो वो करो। ठीक है, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ? नहीं अभी तो नहीं। हाँ। अभी तो मैं मतलब बहुत एक्सपेक्ट करती हूँ खुद से। मैं चाहती हूँ कि मैं हर कंपटीशन में पार्ट लूँ, प्राइज आ जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम कह सकते हैं कई बार पॉसिबल भी होता है जो अगर मेहनत की जाए हर चीज़ पे, बट मैं अभी खुद से बहुत एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैं बहुत आगे ਮਿਹਨਤ जाऊँ। ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ? हाँ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? अभी तो एफर्ट्स डाल रही हूँ, अभी तो रिजल्ट बाद में मिलेगा, बट अभी मैं कहूँगी कि सेटिस्फाई होने में थोड़ी सी देर है। ਆਲ ਦ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ, ਆਲ ਦ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਐਂਡ Thank ਥੈਂਕ ਯੂ you. ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਰਿਦਮ ਆ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਆ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਰੀਅਲੀ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।